اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین محمد خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم واللہ یغفر لکم ذنوبکم، یعنی اے پیغمبر کہہ دیجئے اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو میری پیروی کرو، اللہ تمہیں محبوب رکھے گا اور تمہارے گناہوں کو تمہارے لیے بخش دے گا۔ سامعین اکرام، یہ بڑی مسرت کی بات ہے کہ سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پر روشنی ڈالنے کے لیے آپ سے مخاطب ہو رہا ہوں۔ سیرت کا عنوان سلسلے وار پیش کرنے کی کوشش ہوگی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اصل میں جس پیغام ربانی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں مکمل طور پر اتار کر انسانوں کے سامنے پیش کیا اور لوگوں کے درمیان اپنی زندگی گزاری، اور جس کے ذریعے انسان کو اندھیروں سے نکال کر اجالے میں اور بندوں کی بندگی سے نکال کر اللہ کی بندگی میں داخل کیا، اور احکام الہی کو جس طرح سے معاشرے میں نافذ کیا، اسی کو ہم سیرت طیبہ کے طور پر جانتے ہیں۔ سیرت طیبہ پر روشنی ڈالنے کے لیے یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ دور جہالت میں عرب قبائل کے حالات اور واقعات اور عرب قوموں کے بارے میں کچھ جائزہ لیا جائے۔ مورخین نے نسلی اعتبار سے عرب اقوام کی 3 قسمیں بیان کی ہیں۔ پہلی قسم ہے عرب بائدہ۔ یہ وہ عرب قدیم قبائل اور قومیں ہیں جو تقریباً مٹ چکی ہیں اور اس کے تعلق سے ضروری تفصیلات بھی دستیاب نہیں ہیں۔ ان قوموں میں قوم عاد، قوم سمود، قوم جدیس اور قوم عمالقہ وغیرہ شامل ہیں۔ دوسری قوم ہے عرب عاربہ۔ یہ عرب قبائل یعرب بن یشجب بن قحطان کی نسل سے ہیں۔ انہیں قحطانی عرب بھی کہا جاتا ہے۔ تیسری قوم کا نام ہے قوم عرب مستعربہ، یعنی وہ عرب قبائل جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہیں، انہیں عدنانی عرب بھی کہا جاتا ہے۔ چونکہ عرب بائدہ کی قوم جو عاد و سمود وغیرہ کی قوم تھی وہ ناپید ہو چکی ہے، اس لیے ان کے بارے میں کسی بھی تبصرے کی ضرورت نہیں ہے، جبکہ دوسری قوم عرب عاربہ کے بارے میں مورخین کا خیال ہے کہ یہ قحطانی عرب ملک یمن میں پناہ گزین تھے۔ یہیں ان کے خاندان اور قبیلے مختلف شاخوں میں پھوٹے، پھیلے اور بڑھے۔ ان میں 2 قبیلوں حمیر اور کوہلان نے بڑی شہرت حاصل کی۔ ان کے دونوں قبیلے یعنی حمیر اور کوہلان کا ذکر مورخین نے یوں کیا ہے، جن میں قوم کوہلانی قبائل کا ذکر ہی ضروری ہے کیونکہ اسی قبیلے کی شاخوں کا تعلق مدینہ سے ہے۔ عام کوہلانی قبائل نے بعد میں یمن چھوڑ دیا تھا اور جزیرۃ العرب کے مختلف علاقوں میں پھیل کر ان کے ترک وطن کا واقعہ اس وقت پیش آیا جب رومیوں نے مصر و شام پر قبضہ کر کے اہل یمن کی تجارت، سمندری راستے پر اپنا قبضہ جما لیا اور خشکی کے راستوں کے سہولیات کو بھی تباہ کر دیا، جس سے کوہلانیوں کی تجارت برباد ہو گئی۔ کوہلانی قبیلے کی ایک شاخ ثعلبہ بن عمرو کا تذکرہ کرنا بھی
ज़्यादा मुनासिब मालूम होता है, क्योंकि इसी कबीले की नस्ल से दो कबीले ओस और खजरज का ताल्लुक़ है, जो हारसा बिन सालबा के बेटे हैं। हारसा बिन अमरू की एक शाख जो खुज़ा की औलाद थी, उन्होंने सरजमीन हुजाज में गर्दिश करते हुए मक्का में खेमाजन हुए और फिर हरम पर धावा बोल दिया और बनु जुरहम को निकालकर खुद मक्का में हरम पर कब्जा कर लिया। सालबा बिन अमरू की औलाद और ख़ानदान जब मजबूत हो गया तो उन्होंने मदीना की तरफ का रुख किया और वहीं मदीना में ही बस गए। कोहलान के अलावा हमीर का भी एक कबीला इराक में जाकर बोधबाश अख्तियार कर लिया। अरब मुतारबा चूँकि हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल से ताल्लुक़ रखते हैं और इसी नस्ल से आगे जाकर हमारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिलसिला नस्ब भी मिलता है, इसलिए इसी कबीले के बारे में तफसील से जायज़ा लेना ज़रूरी समझता हूँ। चूँकि इस कबीले के जद्द अमजद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम असल में इराक के बाशिंदे थे, जहाँ की खुदाई के दौरान जो कुतबात निकले हैं उनसे उस शहर के बारे में बहुत सी जानकारियाँ भी हासिल हुई हैं और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ख़ानदान और वहाँ के बाशिंदगान के दीनी और इज्तिमाई हालात के बारे में भी जानकारी मिली है। ये वाज़ेह है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इराक से हिजरत करके फ़िलिस्तीन चले गए थे और वहीं उनका पैगम्बराना सरगर्मियों का मरकज़ रहा। एक बार हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मिस्र का सफ़र किया तो फ़िरऔन आपकी बीवी हज़रत सारा के बारे में बदनीयत हो गया, लेकिन अल्लाह ने हज़रत सारा की दुआ के नतीजे में फ़िरऔन की ऐसी पकड़ की कि उसके हाथ पांव शल हो गए। फिर उसने हज़रत सारा की खुसूसियत से मुतासिर होकर अपनी बेटी हाजरा को उनकी खिदमत में दे दिया। फिर हज़रत सारा ने हज़रत हाजरा को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़ौजियत में दे दी। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फ़िलिस्तीन वापस आए तो अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हज़रत हाजरा के बतन से हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम अता किया। चूँकि हज़रत सारा बे औलाद थीं, इसलिए वो ये बर्दाश्त नहीं कर सकीं कि उनकी सौकन का बेटा उनके सामने रहे, लिहाजा उन्होंने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मजबूर किया कि हज़रत हाजरा को उनके बेटे समेत दूसरे कहीं दूर ले जाकर दूसरी जगह छोड़ आवें। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत सारा की बात को मानकर हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को वादी सफ़ा और मरवा नामी दो पहाड़ियों के दरमियान बैतुल्लाह के करीब एक सुनसान जगह पर ठहरा दिया, जहाँ सिर्फ टीले की तरह उभरी हुई ज़मीन थी। उस वक्त बैतुल्लाह नहीं था। वहीं एक बहुत बड़ा दरख्त था जहाँ पर आज जमजम का कुआं है। उसी दरख्त के पास हज़रत हाजा और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को छोड़कर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वापस फ़िलिस्तीन चले गए। उस वक्त मक्का में ना पानी था, ना इंसान की बस्ती थी। उनके खाने पीने के सामान के तौर पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक तोशादान में कुछ खजूरें और एक मशकीज़ा पानी रख दिया था। सही बुखारी शरीफ किताबुल अंबिया में मज़कूर है कि चंद ही दिन में हज़रत हाजरा का तोशा भी ख़त्म हो गया, यानी खजूर और पानी ख़त्म हो गया, तो काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मगर उस मुश्किल की घड़ी में भी हज़रत हाजरा अल्लाह के तवक्कल पर रहीं और फिर अल्लाह का फजल हुआ और जमजम का चश्मा भी फूटा। एक मुद्दत के बाद एक काफिला जो बनी जुरहम के इस कबीले से ताल्लुक़ रखता था आया और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की वालदा माजदा हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम की इजाज़त से वहीं मक्का में ठहर गया। सही बुखारी में इतना वाक़या ज़रूर मिलता है
कि बनु जरहम का यह काफिला मक्का में हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की आमद के बाद उनके जवान होने से पहले भी आया था और उस वादी में उनका गुज़र इससे पहले भी हुआ करता था। बहरहाल अल्लाह आलम। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी और बच्चे की खबर लेने के लिए बीच बीच में मक्का तशरीफ़ ले जाया करते थे। मौरख़ीन का ख्याल है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मक्का की आमद 4 बार हुई है। कुरान करीम में सूरह साफ़ात की आयत नंबर 103 से आयत नंबर 107 में बयान किया गया है कि अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ख्वाब में दिखलाया कि वह अपने बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़बह कर रहे हैं। यह ख्वाब एक तरह से हुक्म इलाही था और बाप बेटे दोनों उस हुक्म इलाही की तामील में तैयार हो गए। जब दोनों ने सरे तस्लीम खम कर दिया और बाप ने बेटे को पेशानी के बल लिटा दिया तो अल्लाह ने पुकारा, ऐ इब्राहीम, तुमने ख्वाब को सच कर दिखाया। हम नेकोकारों को इसी तरह बदला देते हैं। यकीनन ये एक खुली हुई आजमाइश थी और अल्लाह ने उन्हें फिदिया में एक अजीम ज़बीहा अता किया।